everyone, welcome to Biosimplified for UPSC. Without wasting our time, let us start our discussion on cell. So, why this topic is important? Because UPSC asks questions on diseases, bacteria, virus, biotechnology, genetics, cloning, etc., which are directly or indirectly related to cell. So, if you understand the cell properly, half of biology becomes easy and you will stop fearing science. In this lecture, we will study what is cell, cell theory, structure of cell and types of cell. So, let us begin with what is cell. हमारे शरीर की वो सबसे छोटी यूनिट जिससे मिलकर हमारी बॉडी बनी है उसे हम सेल कहते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज सेल. हमारी पूरी बॉडी फ्रॉम ब्रेन टू स्किन टू ब्लड इज नॉट एक्चुअली मेड ऑफ ऑर्गन्स. इट इज मेड ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड cells. So, in simple words, we are actually a collection of trillions of cells working together. तो हम कुछ नहीं बस trillions of cells से मिलके बने हुए हैं. So, the smallest unit is known as cell. When the cell forms a group, it is known as tissue. So, the group of cell is known as tissue. For example, muscle. Muscle is a tissue. When different tissue come together, they form an organ. For example, stomach. Stomach is an organ formed from the combination of different tissues. When different organs come together and work in a coordinated manner to perform a specific function, it forms organ system. For example, digestive system. In digestive system, various organs like liver, gallbladder, pancreas, stomach, small intestine, large intestine, etc. work together to perform the specific function of digestion, and it forms the organ system which is known as digestive system. When the various organ systems are combined, then an organism is formed. For example, we have different system: excretory system, respiratory system, reproductive system, circulatory system, etc. सो तो सेल क्या होता है? वो स्मॉलेस्ट यूनिट जिससे हमारी बॉडी मिलकर बनी है उसे हम सेल कहेंगे. और सेल से मिलकर बनते हैं टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू आपस में मिलकर बनाते हैं ऑर्गन. ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम. और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब कंबाइन होते हैं वो बनाते हैं ऑर्गेनिज्म. अब देखते हैं सेल की डिस्कवरी कैसे हुई. 1665 के अंदर रॉबर्ट हुक ने कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर और उसे एक हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया. उसे ऐसे हेक्सागोनल बॉक्सेस दिखाई दिए और उसने एक सिंगल हेक्सागोन बॉक्स को नाम दिया सेल. सो द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, बट ही ऑब्जर्व्ड द डेड सेल. कॉर्क इज द डेड टिश्यू. The first person to observe a living cell was Anton von Leeuwenhoek. In 1838, Schwann and Sheldon gave the cell theory. They postulated that all living organisms are made of cell. Whether it be plant, animal, microbes, bacteria, every living organism is made of smallest unit called cell. They call cell as the structural and functional unit of life. Why? Because cell is a unit which is capable of independent existence. It can perform all the functions independently like respiration, reproduction, metabolism, etc. Then the cell theory was modified by Rudolf Virchow. He stated that omnis cellula e cellula. This is an important statement which means new cells arise from pre-existing cells. Which means the cell which existed earlier divided and formed new cells.
नाउ लेट अस अंडरस्टैंड सेल स्ट्रक्चर। हम सेल स्ट्रक्चर को सिटी के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एक सिटी है, उसके अंदर क्या क्या होगा, उसकी बाउंड्री होगी, उसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो डिसाइड करेगी कैसे फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे पूरी सिटी के अंदर। उसके अंदर एक पावर स्टेशन होगा जिससे एनर्जी जनरेट होगी। उसके अंदर कुछ फैक्ट्रीज़ होंगी जिसके अंदर प्रोडक्शन का वर्क होगा। कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जिससे जो मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसे ट्रांसपोर्ट किया जा सके। कुछ स्टोरेज एरिया होगा जहाँ जो मटेरियल प्रोड्यूस किया गया है उसे स्टोर किया जा सके। वैसे ही सेल के अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो जैसे एक सिटी के अंदर पावर स्टेशन होगा, फैक्ट्री होगी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वैसे ही सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होंगी और यही चीज़ें सेल के अंदर मिलती हैं। This is a cell. So the outer boundary of cell is known as plasma membrane. जैसे एक सिटी की आउटर बाउंड्री होगी वैसे ही सेल की आउटर बाउंड्री होगी जिसे हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन है वो क्या है? प्रोटेक्शन। ये सेल को प्रोटेक्ट करेगी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ये सेल को सेपरेट करती है फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। सेल के अंदर एक फ्लूइड फील्ड होगा। दिस इज द फ्लूइड फील्ड इन द सेल विच इज नोन एज साइटोप्लाज्म। अब जैसे कि एक सिटी के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करती है क्या फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, वैसे ही सेल के अंदर एक सेंट्रल ऑर्गेनेली होगा जिसे हम कहेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। इसके पास इंफॉर्मेशन होगी कि सेल के अंदर कौन से फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटीरियल। This genetic material can be in the form of DNA और RNA। DNA क्या होता है, RNA, क्रोमोसोम, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। There will be an organelle in cell which will perform the function of energy production, जिसे हम कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोडक्शन। ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ATP। देन देयर विल बी एन ऑर्गेनेली विच विल बी इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो ऑर्गेनेली है इसे हम कहेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही एक और ऑर्गेनेली लगी होती है जिसे हम कहेंगे राइबोसोम। और इसी राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप की होती है। एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होती है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं लगे होते हैं, और एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। सो दिस इज अ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड दिस इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, लिपिड बनाना। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। अब राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड सिंथेसाइज करेगी, और ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्रोडक्शन के बाद ये जो मटेरियल है उन्हें ट्रांसपोर्ट कर देगा एक और ऑर्गेनेली के पास जिसका नाम है गोल्जी अपैरेटस। दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपैरेटस। इसका फंक्शन है पैकेजिंग। जो भी न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उसे पैक करने का काम है गोल्जी अपैरेटस का। ठीक है, अब कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, उस वेस्ट का रिमूवल करने के लिए एक ऑर्गेनेली है लाइसोसोम। दिस ऑर्गेनेली इज कॉल्ड लाइसोसोम। इसका फंक्शन है रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल एंड वेस्ट फ्रॉम सेल। अब एक और ऑर्गेनेली होगा सेल के अंदर जिसे हम कहेंगे वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या है? स्टोरेज का। Vacuole will store all the materials produced in the cell. So this is the structure of cell. और ये जो भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, यानी उनके बाहर दो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होंगी। सो लेट अस अगेन रिवाइज। अब जैसे एक सिटी होती है उसकी आउटर बाउंड्री होगी, ठीक है, वैसे ही सेल की आउटर बाउंड्री है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का। ठीक है, अब जैसे सिटी के अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है जो डिसाइड करेगी कैसे फंक्शंस परफॉर्म किए जाएंगे, वैसे ही सेल का जो ब्रेन है वो है न्यूक्लियस। सेल का ब्रेन है न्यूक्लियस, और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि सेल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, और वो इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए या फिर आरएनए की फॉर्म में होता है। और डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब क्या होता है ये हम नेक्स्ट क्लास में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन देयर एन ऑर्गेनेली जो अटैच होगी न्यूक्लियस से जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो दो टाइप की होगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सी होगी? जिसके ऊपर राइबोसोम लगे होंगे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होगी जिसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट होंगे। देन ये जो राइबोसोम प्रोटीन जो भी सिंथेसाइज किया गया है उसे ट्रांसपोर्ट करेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, किसके पास? गोल्जी अपैरेटस के पास। गोल्जी अपैरेटस है उसका फंक्शन है पैकेजिंग, ये जो भी मटेरियल है उसे पैक करेगा। देन देयर विल बी एन अनदर ऑर्गेनेली विच इज़ नोन एज वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन है स्टोरेज, जो भी मटेरियल प्रोड्यूस हुए हैं उसे स्टोर करेगा वैक्यूल। देन अब कुछ वेस्ट भी प्रोड्यूस होगा, उस वेस्ट के रिमूवल के लिए एक और ऑर्गेनेली है जिसे हम कहेंगे लाइसोसोम। इसका काम है रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम सेल। अब ये जो भी प्रोसेस हुए हैं इस प्रोसेस को होने के लिए एनर्जी भी चाहिएगी। ये एनर्जी कहाँ से आएगी? माइटोकॉन्ड्रिया। दिस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया in the form of ATP, and the complete cell is filled with a fluid matrix which is known as cytoplasm. So this is the structure of cell. Now let us understand the difference between prokaryotic cell and eukaryotic cell. The word pro means primitive and the word karyotic means nucleus. वो सेल जिसके अंदर प्रिमिटिव न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, उसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। देन यूकैरियोटिक सेल, यू मीन्स एडवांस्ड और कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। वो सेल जिसके अंदर एडवांस या फिर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। So the first difference between prokaryotic and eukaryotic cell is prokaryotic cell lacks well developed nucleus
and the eukaryotic cell possess well developed nucleus. सेकेंड डिफरेंस इज, अब इसके प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है डेवलप्ड, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही स्कैटर्ड मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, और यूकैरियोटिक सेल के अंदर, इन यूकैरियोटिक सेल जेनेटिक मटेरियल is present in the membrane bound nucleus. And third difference is, in prokaryotic cell the ribosomes are of 70S type, and in eukaryotic cell the ribosomes are of 80S type. अब 70S टाइप क्या होता है, 80S टाइप क्या होता है, ये जानने की हमें ज़रूरत नहीं है। हम बस याद कर सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 70S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं और यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। सो अ प्रोकैरियोटिक सेल इज लाइक, दिस इज द सेल, इट इज फिल्ड विथ साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जो डीएनए है वो ऐसे ही स्कैटर्ड मिलेगा, डीएनए या फिर आरएनए, ये ऐसे ही स्कैटर्ड मिलेगा, और इसके अंदर जो राइबोसोम्स होंगे वो 70S टाइप के होंगे। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। सो ऑल द बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोट्स, बट नॉट ऑल द प्रोकैरियोट्स आर हार्मफुल फॉर अस। And the example of eukaryotic cell is plant cell, animal cell, fungi, etc. All these are eukaryotic cell. So let us revise again. प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर स्कैटर्ड मिलेगा, एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर नहीं पैक्ड मिलेगा। ठीक है। और इसके अंदर जो राइबोसोम है वो 70S टाइप का मिलेगा, और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो एब्सेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, और इसका एग्जांपल है बैक्टीरिया। वहीं पे यूकैरियोटिक सेल के अंदर एडवांस न्यूक्लियस यानी वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो पैक्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर, और इसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, और जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है। इसकी एग्जांपल है प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई। अभी जो हमने सेल का स्ट्रक्चर देखा था ये एक यूकैरियोटिक सेल का ही स्ट्रक्चर था। सो नाउ लेट अस डू अ PYQ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलीज प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस? इनमें से कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होती है? ऑप्शन ए लाइसोसोम एंड सेंट्रोसोम, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम, सी गोल्जी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया, डी लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सो comment the answer in the comment section. We have studied this topic. In the next class we will understand cell organelles in detail about DNA, chromosome, and what is the difference between plant cell, animal cell, and the 5 kingdom classification given by Robert Whittaker. Thanks for watching.